So here are some examples. Let's see one by one. See, example number 1. There is a kite in the sky. There is a kite in the sky. So in is your preposition और kite और sky के बीच में रिलेशन बता रहा है. क्या रिलेशन बता रहा है कि जो kite है वो आकाश में है. सो यहाँ पे kite और sky का क्या रिलेशन बताया. सो in यहाँ पे आपका preposition हो गया. ठीक है. Coming to example number 2. The horse jumped over the hurdle. The horse jumped over the hurdle. So over is your preposition. Fine. Horse ने hurdle के ऊपर से jump किया. Fine. The horse jumped over the hurdle. Hurdle के ऊपर से jump किया. Fine. Coming to next example. Example number 3. I will go to the market at 6 p.m. I will go to the market at 6 p.m. At is your what? At is your preposition और time जब आपका specific है, जब आपको पता है कि आप कितने बजे जा रहे हो, the time is specific and what is the time over here? It is 6 p.m. So at उसके साथ जब आपको exact time पता हो, you will use at 6 p.m. So मैं market जाऊंगा कितने बजे जाऊंगा? 6 p.m. पे. Fine. Next example number 4. He was rewarded by his teacher. He was rewarded by his teacher. So by is your what? By is your preposition. उसे यहाँ पे क्या हुआ? Reward की बात कही गई है. He was rewarded by his teacher. तो क्या बता रहा है कि yes, उसे अवार्ड मिला. किसने दिया? टीचर ने दिया. टीचर से अवार्ड मिला. टीचर से अवार्ड मिला. That means by is your preposition. Fine. Next example. It has been raining for 2 hours. It has been raining for 2 hours. So for is your preposition. मतलब 2 घंटे से बारिश हो रही है. Fine. Next example. They have been singing since morning. They have been singing since morning. So since is your preposition. Remember, since is also a preposition. It works like a preposition. And यहाँ पे वो क्या कह रहा है? सुबह से वो लोग सुबह से गाना गा रहे हैं. तो since morning. Fine. Now next example. The park is beside my home. Beside मतलब बगल में है. So the park is beside my home. So beside is your what? Preposition. Now next example. Besides storybooks, Aarti wanted to buy color pens. Again this beside and this beside both are different. इस beside का मतलब होता है बगल में. And besides when you have a s to it, जब आपका s हो besides में, इसका मतलब होता है in addition to, यानी इसके अलावा. besides का मतलब हो गया जिसमें s लगा हो, उसका मतलब होता है इसके अलावा. यानी स्टोरी बुक्स के अलावा आरती को कलर पेंसिल्स भी खरीदनी थी. फाइन. नेक्स्ट एग्जाम्पल. द रेन ड्रॉप्स फेल इनटू द पॉन्ड. ओके. द रेन ड्रॉप्स फेल इनटू द पॉन्ड. सो इनटू इज योर प्रेपोजिशन. जो बारिश की बूंदे वो पॉन्ड में गिर रही थी. फाइन. सो मूवमेंट दिखा रहा है. मूवमेंट दिखा रहा है. वो पानी में है नहीं बट गिर रही है धीरे धीरे. सो आपको इनटू से क्या पता चलता है? इनटू का मतलब होता है मूवमेंट. ओके. मूवमेंट होता है. द रेन ड्रॉप्स फेल इनटू द पॉन्ड. सो एक आपको मूवमेंट दिखा रहा है कि रेन ड्रॉप्स जो पानी की बूंदे हैं, जो रेन ड्रॉप्स हैं वो पॉन्ड में गिर रही हैं. मतलब कंटिन्यूटी बनी हुई है. ठीक है. मूवमेंट है. So it into is your preposition. Fine. Now next example beta. Divide this apple between Max and Luna. So divide this apple between Max and Luna. So यहाँ पे between आपका क्या है? Between is your preposition. Again between is your preposition and we are talking about 2 persons. तो वहाँ पे हम लोग between use करेंगे. Fine. Now coming to next example beta. Coming to next example. Next example says, we please share these toffees among your friends. Please share these toffees among your friends. When we are talking about more than 2 persons, so there we use among. ठीक है. Fine. So among is your preposition over here. Fine. Between आप 2 persons के लिए use करेंगे and among more than 2 persons. Fine. Now coming to next example. I shall be back in a year. तो इन आपका क्या preposition है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल. राहुल मेट मी एट मेरठ इन उत्तर प्रदेश. राहुल मेट मी एट मेरठ इन उत्तर प्रदेश. सो एट मेरठ in Uttar Pradesh. So at and in is your preposition.
एंड वन मोर थिंग इन दिस, जब आपका कोई आपका ये सिटी दिया रहता है, ठीक है, सिटी दिया है और उसके साथ साथ आपके उस एग्जाम्पल में स्टेट भी दिया रहे, तो सिटी और स्टेट में कौन सा बड़ा हुआ, स्टेट ज्यादा बड़ा हुआ, तो स्टेट में उत्तर प्रदेश इज देयर, ठीक है। तो वहां पे जब आपको एक एग्जाम्पल में अगर सिटी भी दिया हुआ है, स्टेट भी दिया हुआ है, जैसे इस एग्जाम्पल में मेरठ भी दिया है और ये बता रहा है कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश आपका स्टेट है तो बड़ा हुआ, एंड मेरठ आपकी सिटी है तो ये क्या हुआ, कंपेयर टू स्टेट छोटी हुई। तो जब आपको एक ही एग्जाम्पल में दो चीजें साथ में दी हैं तो सिटी के साथ एट लग जाएगा और स्टेट के साथ आपका क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा, when two things are given in one sentence, fine। तो राहुल met me at मेरठ in उत्तर प्रदेश। अगर यहाँ पे हम लोग उत्तर प्रदेश को नहीं लिखते, सिर्फ ये होता कि डैश मेरठ, सो ये होता, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश को अगर नहीं लिखते सेंटेंस में, सिर्फ ये लिखते कि राहुल met me डैश मेरठ, सो आपका यहाँ पे आंसर होगा राहुल met me in मेरठ। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में सिटी भी दिया हुआ है, स्टेट भी दिया हुआ है, तो उस पे आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेट ज्यादा बड़ा हुआ तो उसके लिए आप इन यूज करेंगे, और उसके कंपैरिजन में सिटी छोटी हुई तो उसके लिए आप एट यूज करेंगे, और अगर नहीं दिया हुआ है स्टेट तो सिंपली आप इन का यूज कर लेंगे, फाइन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी विल रिटर्न विद इन अ ईयर। तो विद इन इज ऑल्सो प्रेपोजिशन, वो साल भर के अंदर आ जाएगी, साल भर के अंदर, फाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल गो टू दी बर्थडे पार्टी विद हिम, उसके साथ मैं जाऊंगा, फाइन। सो विद इज योर प्रेपोजिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, फॉन्ड के साथ म्यूजिक हो या कोई भी फूड आइटम्स हो, उसके साथ आपका हमेशा फॉन्ड अगर आ गया, केसेस में यहाँ पे एक वो है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, फॉन्ड के साथ हमेशा आपका कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, ऑफ लगता है। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, आई एम फॉन्ड ऑफ पेस्ट्रीज, या आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स। सो इस केसेस में जब भी आपको ऐसे वर्ड मिले फॉन्ड, तो उसके साथ हमेशा ऑफ जाता है, फाइन। तो शी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, सो ऑफ इज योर प्रेपोजिशन, फाइन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, प्लीज लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग। प्लीज लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग, उसकी बात सुनो कि वो क्या कह रहा है। सो टू इज योर प्रेपोजिशन।